Here we have Aman sir with us, जो कि हमारे लाइफ कोच भी है एंड बिजनेस कोच भी है. एंड टुडे as a girl, as a woman, we always want to know ना कि what's the male perspective in a relationship. क्या है, क्या आखिर क्या सोचते हैं मेल. So we have male over here to tell us कि exactly क्या perspective होता है मेल का. So girls, be open to ask as many questions you want to ask. जो सवाल पूछने हैं आज पूछ डालो. We will start with here. हम Uh, बेसिक से स्टार्ट करेंगे. Drishti, before you start, I want to acknowledge something, if I have your permission. Yeah, definitely, sir. Yeah. So people who are watching right now or people who will be watching it later, you guys don't know something. This lady over here did something amazing yesterday. Yeah, Hmm. I think Hmm. on 1 day back. Yeah. And what was it? Can you tell us? Okay. So I'm a big food lover. So it's Hmm. like खाना तो दूर रहा नहीं जा सकता. But with the help of Aman sir, I was talking to Aman sir and I was just happy. Yeah, it was you actually. So I am a person who even eats on Ekadashi. I keep Ekadashi fast, लेकिन मैं एकादशी में भी खाती हूँ. But while I was talking to Aman sir एक दिन पहले एकादशी के, and it's a big, alignment, कि सर टोल्ड मी कि आई यूज्ड टू डू फास्ट फॉर 7 days. मैं 7 दिन बिना खाए पिए फास्ट रख लेता हूँ. एंड I'm आई still वाज on that लाइक, fast. ओह, एंड हाउ मेनी डेज हैव डन, कितने दिन हो गए अभी तक? Today is the ninth day and I've like started the opening up process. तो आज मैंने finally एक coconut water पिया, which is like so yeah. Please पहले आप अपना बोलो उसके बाद will get to me. No, I will take let's focus on you right now. Yeah. तो देन अमन सर से बात करके मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं एकादशी का फास्ट बिना कुछ खाए रखूंगी, तो ऑन वाटर. एंड आई डिड दैट. बट Hmm. नाउ आई एम लाइक, बाप रे, अमन सर ऑन 9th day स्टिल नॉट ईटिंग एनीथिंग. Hmm. Yeah, I mean, it's we had a like we were chatting and we had a good conversation. You were asking, how do you do this? What is this? ये वो मैं नहीं कर पाती एकादशी का. And you were just telling me कि आप नहीं कर पाते हो. And then I see a message, sir, I did it. And this I was like, wow. आई थिंक So, इट्स अ बिग yeah, बिग अलाइनमेंट थिंग हैपेंड कि एक दिन hmm, पहले ही हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, नेक्स्ट डे वाज एकादशी. yeah. So that was beautiful. And I felt blessed. I felt कि I did something like just like with a simple conversation, and you're giving me that credit, but you are the one who did it. So ये अभी मेरे स्टूडेंट ने रिसेंटली एक बात बोली है. मैं जनरली ना अपने स्टूडेंट्स को बोलता था ऑल यू. तो मेरी स्टूडेंट ने अभी एक बताया कि नहीं सर आप बोला करो मोस्टली यू बिकॉज यू ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन इट सो डोंट cut down your part in it. So I will say this right now, mostly you. नो, बट आई थिंक द आइडिया केम फ्रॉम यू. एंड यू वोंट बिलीव कि मैं अभी एकादशी रखना बंद करने वाली थी बिकॉज दिस इज द थॉट कि ना भूखा रहा नहीं जाता. Hmm. एंड लिटरली आई वाज थिंकिंग, बट देन आई रियलाइज आफ्टर टॉकिंग टू यू कि हम कितना खुद को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं रख पाते. बट Hmm. ओनली आफ्टर लिसनिंग टू योर स्टोरी कि आप 7 दिन से बिना मतलब कुछ खाए पिए हो, आई वाज लाइक, लेट्स डू इट. एक दिन तो मैं भी ट्राई करके रख सकती हूँ ना. Hmm. So it was like when this thought came, and I think mind has the power. Then mind is the play. Absolutely. So Couldn't have much. said it better. Yeah. एंड कुछ नहीं तो आप ये बोल सकते हो ना वहां पे एक पागल आदमी है जो कर रहा है 7 दिन 9 दिन पता नहीं क्या करता जा रहा है. मैं एक दिन तो कर ही लूंगी यार. No, I think it was a big thing. ना, I was like, आप कर रहे हो तो मैं तो start कर सकती हूँ. I can learn from you, and I definitely learn. उस दिन मुझे feel तक नहीं हुआ कि मुझे खाना है. वरना नॉर्मली Absolutely. एकादशी में लगता है क्या खाऊं, भूख लग रही है. बट Hmm. दैट डे मुझे फील तक नहीं हुआ कुछ भी. तो या Hmm. इट्स बिग थैंक्स टू यू. Yeah. And आपके कान्हा जी, of course. Yeah. ऑलवेज हिम. Bigger thank to him. And one more thing कि जैसे ये this this tells me the power of human minds. Whoever is watching, like एक टाइम होता था जो 100 मीटर डैश का ना एक रिकॉर्ड होता था कि इतने सेकंड्स तक ही कर पाते हैं लोग. नहीं कर पाते, कोई उससे आगे नहीं बढ़ रहा था. देन वन गाय केम, ही क्लियर्ड दैट इन अ फास्टर टाइम. और जैसे ही उसने किया ना, उसके 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों ने कर लिया. जो 10 साल तक नहीं हुआ था, 1 person did it, then everyone did it. So
You saw me, you were like, अच्छा, this guy is doing this much, I will do one day. Hmm. जो आप कह रहे थे मैं कभी नहीं कर सकती, I'm a big foodie, I'm this and that, Yeah, you did it. So right. there you are. Now you're living that life. Right. I think Kanaji had this plan of sending you on the just day before of Ekadashi ki, Hmm. देखो you can. Yeah. Perfect, perfect. Hmm. Good. Let's Yeah. start the main thing. Yes. People are waiting for A it. very I think girls, gratitude-full girls starting. are mostly waiting for it. Yeah, yeah, girls, please. I mean, you can start and then girls can take over. Girls, if have any questions, they can join, they can ask. Today's topic is about relationships and a male's perspective. So Yes. let's see how it goes. Please. So girls, whatever question you have, start putting in. We will Hmm. start. But whatever thought come in your mind, just put it out. Hmm. And okay. Okay, Okay. So you have read this book, Girls Are From Venus and Boys Are From Mars. classic. Right. So today, as we are going to start about relationship, Hmm. so I will put a question, but Hmm. somehow I will tell you what a girl think about it. एक female perspective क्या होता है? Hmm. So in that we will see the difference as well and see how we can go through the relationship. Hmm. किसी का एक So क्वेश्चन आया है. First, I want to acknowledge Nikhil भाई. Aman bhai always rocks. I love you, brother. And then I think Pete, you please you do the hosting. मैं तो आगे ही आ गया. Please आप करो. Question I yes, have. yes. So let's go for the first question. That do you think of going back to their exes? Do boys think of going back to their exes? Do boys? अच्छा हाँ. Okay. Before I answer that and before I answer any question, let me tell you something. मैं दो पर्सपेक्टिव से आंसर्स दूंगा. ठीक है. एक जो जनरल बॉयज का आंसर होता है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं. आई हैव known boys all my life and women as well, but boys और जो मेरे clients आते हैं जो इतने साल से कर रहे हैं, एक मैं उनका आंसर दूंगा और एक अगर चाहिए आप लोगों को तो मैं अपना आंसर भी दे दूंगा. बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव काफी चीजों में मैंने देखा है कुछ लोगों से डिफरेंट है. Right. तो अगर मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दूंगा देन दैट विल बी वेरी वन साइडेड. Yeah. एंड देन जो गर्ल्स यहाँ पे आई है ना सोच के कि मैं अपने बंदे का देखूंगी या इसका देखूंगी, तो उसको लगेगा यार ये सर ने तो ये बोला था, ये तो उल्टा ही बोल रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. So I'll try to give a perspective of that other person, like a general population of 80% of men. And again, this is my opinion of their perspective. I could be wrong there as well. So I'm just putting that out there. And now coming back to the question, which is, do guys think of going back to their exes? Guys do think, अगर breakup, that depends किसने breakup किया है. दैट डिपेंड्स किसने ब्रेकअप किया है. अगर एक लड़के ने ब्रेकअप किया है ना, तो फिर वो नहीं सोचेगा. और अगर वो सोचेगा, ये मैं गाइस का बता रहा हूँ, वो सोचेगा कि अगर उसने कर दिया, बिकॉज सी जनरली व्हाट आई हैव सीन विद अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, women break up in their minds even before they actually break up. वो इमोशनली अपने टाइज कट कर देती हैं, द कनेक्शन इज गॉन एंड इट गोज ऑन फॉर अ वाइल एंड देन दे से ओके मेरे को नहीं समझ आ रहा, मुझे ब्रेकअप चाहिए या मुझे ये चाहिए वो. पहले देर इज अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ पीरियड एंड देन फिर वो लड़का भी चैलेंज लेता है, मैं मनाऊंगा मनाऊंगा, आई डू दिस, मैं सब कुछ करूंगा तेरे लिए. वो कह रही है भाई चाहिए ही नहीं. तो वो थोड़ा वो चलता है, डांस चलता है. एंड अब इसमें ना अगर एक लड़के ने बोल दिया ना कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, तो वो बहुत तंग आ चुका है. बिकॉज मैंने देखा है जो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, दिस माइट साउंड अ लिटिल biased, but I've seen the boiling point in a majority. Boys have that boiling point कि अगर बंदे ने सामने से बोल दिया ना भाई खत्म है, तो वो खत्म है. Hmm. और Right. वो नहीं हिलेगा उससे. और अगर वो वापस आएगा तो वो ओनली फिजिकल नीड्स, दैट्स इट. ही वुडंट कम बैक फॉर एनी अदर पर्पस. But क्योंकि I have heard. हम्म, Go on, go on. हाँ नहीं प्लीज यू हैव हर्ड. Yeah, but like girls do this more. कि अगर they are breaking up like in their head पहले से, so now they will not go back. But somehow I have हाँ. seen in my आसपास कि boys do come back हम्म. and उनका बाद में relationship बहुत अच्छा जाता है. So what that in psychology over मैंने here? क्या बोला, मैंने क्या बोला? अगर लड़के ने ब्रेकअप किया तो, हाँ, अगर लड़की ने ब्रेकअप किया है तो वो तो भाग भाग के आएगा, उसको तो चाहिए, उसका थोड़ी खत्म हुआ है.
देखो, दो लोग हैं। अगर लड़के ने ब्रेकअप किया तो वो खत्म कर चुका है, नाउ ही इज ऑफ। ठीक है। हम्म। अगर लड़की ने की है तो लड़की क्या करेगी कि अब वो सोच रही है, डैबल कर रही है, शायद वर्क पे फोकस कर रही है, चाहे वो कर रही है। ये भाई साहब ट्राई कर रहे हैं, कहीं से किधर से कुधर कहीं कुछ हो जाए। ठीक है, अब वो कहती है ना चलो वापस आ जाते हैं, तो वो वापस आ जाएगा, वो नहीं सोचेगा। तो आप जो ओके। कह रहे हो वो सही है, बट वो तब सही है जब लड़की ने ब्रेकअप किया। और एंड इन अ अगर मेजोरिटी। लड़के अगर ने ही ब्रेकअप किया है एंड वो हम्म वापस भी आ रहा है, देन देयर रिलेशनशिप इज वर्किंग आउट। हम्म हाँ देखो, अब मैंने जैसे बोला दिस इज 80% ऑफ मेन। ठीक है, देन देर आर 20% मेन, और रादर आई वुड से 10% मेन हु आर लाइक मच्योर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, अगर कभी ब्रेकअप हुआ और वो रीजन उसका ये था, कुछ जेन्युइन रीजन था विच हैड नथिंग टू डू विद द पीपल, कि हम्म। मतलब तू इंसान खराब नहीं है, सिचुएशन खराब है। ठीक राइट। है, एंड देन दे कम बैक एंड द स्पार्क्स आर स्टिल देयर, एंड यू नो, और मे बी देर वॉज अ गैप कि कुछ हुआ, कुछ ट्रस्ट इश्यूज पे हिट हुआ, बट देन दे बोथ हील देमसेल्व्स अपनी अपनी जगह पे जाके। ठीक है, वो लड़की ने अपने आप को हील किया, लड़के ने अपने आप को हील किया। नाउ देर इन अ वेरी गुड प्लेस। नाउ दे कम बैक एंड दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप टुगेदर, एंड दैट गोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो वाओ। दैट इज अ वे दैट इट हैपेंस। एंड अगेन आई टेल यू समथिंग, ये आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा फ्लूइड होते हैं, बहुत ज्यादा डायनामिक होते हैं। ठीक है, करेक्ट। I won't say कि one shoe will fit all. यस। What we are doing राइट। here are generalizations, and we are giving, as coaches, we're giving templates of what राइट। happens. ठीक है, generally ये चीजें होती हैं in a cookie cutter scenario. But if राइट। people are more aware, more evolved, and you know, more like, अब जैसे काफी लोग कहते हैं you can't be friends with your exes. I am friends हम्म। with a lot of my exes, and like राइट। मेरे तो स्कूल टाइम की एक उसके साथ अभी तक मैं फ्रेंड हूँ, एंड वी आर वेरी मेच्योर अबाउट इट। कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अगली किसी गर्लफ्रेंड को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे कैन सी द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी शेयर। इट्स अ वेरी, वी हैव, बाउंड्रीज आर रिस्पेक्टेड, एंड वी जस्ट गो अबाउट इट। So again, that's why I'm saying my perspectives are different other people's perspectives are different, and that can happen with other people as well. So you have to know who you are as a person. तो जिसने राइट। भी ये सवाल पूछा था ना, अगर आपके एक्स का ये सीन है या ऐसा कोई सीन है, आप देखो आप कौन हो, आप देखो वो कौन है। अगर वो ऐसा इंसान है कि भाई मैं तो ऐसा हूं, मैंने कर दिया, तो फिर वो नहीं आएगा। हम्म। अगर वो ऐसा हम्म। इंसान है, वो सोचने के लिए रेडी है, बात करने के लिए रेडी है, कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। वाओ। दैट मीन्स कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकती है। सो यू डोंट हम्म हैव टू जस्ट फाइंड आउट अ कंक्लूजन कि ऐसा ही है। हम्म थिंक अबाउट द हाउ यू आर एज अ पर्सन, हाउ इज अ पार्टनर एज अ पर्सन, एंड व्हाट कैन बी अप्लाइड फॉर यू। वाओ, Absolutely. परफेक्ट। And what kind of a relationship you guys shared? What kind of a level of trust do you have? What kind of a level of intimacy you have? And when I say intimacy, I don't just mean sexual, in other ways as well. How राइट। do you guys connect? And what was the आपने किस बात पे ब्रेकअप किया? That is also important. अगर वो बात, जैसे मैंने कहा, अगर कोई है कि भाई किसी ने चीट कर दिया, ये कर दिया, दैट्स फिर वहां पे थोड़ा मर्की हो जाता है। बट अगर कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आपका हाथ ही नहीं था, like situation happened, you know, things happened and nothing was your part to play in it, so then you, maybe you come back and you come back stronger. You're like, oh wow, now we're mature people and now you know those problems are also gone, जो resistance थी। जैसे कभी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। अब वो चीजें नहीं है, वापस आ गए सेम सिटी में, एंड द वाइब्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, सो लेट्स गो। वाओ। वाओ, व्हाट अ स्टार्ट। आई थिंक दिस इज अ थॉट जो कि हमें स्टार्टिंग में समझ आ गया कि जो भी कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, जब हम बात करने वाले हैं, कि व्हाट इन अ रिलेशनशिप शेयर एंड देन अप्लाइड, डोंट जस्ट अप्लाइड ऐसे। तो एब्सोल्युटली, वो अमेजिंग। दैट गोज विद अमेजिंग। एनी एडवाइस, दैट गोज विद एनी एडवाइस। आप जिस भी जिसको भी फॉलो करते हो, whether it be relationships, whether it be anything, whatever advice is given, you have to see if it applies to you or not. If it doesn't, और राइट। आप खुद भी लगे पड़े हो, नहीं नहीं उसने तो ये बोला था, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, नहीं होगा ऐसे। राइट। तो हर तो किसी की आप, ऐसी नहीं सुननी हाँ, है। आप यार मेरे को, मैं थोड़ा सा एक ट्विस्टेड एग्जांपल आया है जब मैं बोल रहा था मेरे दिमाग में, सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट द एग्जांपल वाज, इफ देर इज अ हैंडीकैप्ड पर्सन, यू नो, हिज लेग्स डोंट वर्क,
और आप उसको बोलो कि भाई लेग डे मार गया जिम में तभी लेग चलेगी, तो ये क्रूअल है। यू कांट Hmm. आस्क एवरीवन टू बिल्ड द मसल्स इन द सेम वे। यू कांट आस्क Right. एन चला पुशअप मारेगा तो तेरे मसल्स बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। उसके लिए वो एडवाइस नहीं काम करेगी ना, तो उसे पहचानना है कि मैं कौन हूँ, और फिर उसको Right. उसके रिगार्डिंग उसके अराउंड वर्क करके वो एडवाइस अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता वो कौन है। Right. And relationships in themselves, they are mirrors of finding yourself first and then finding the other person while you're doing that. Right. और जो Amazing. तो एक दूसरे को जब हम पहचान रहे होते हैं ना रिलेशनशिप्स के थ्रू, तो ही वो अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर हम इफ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, या जस्ट हम घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, बट उसमें क्या मजा होता है? Correct. एक्चुअल मजा उसमें होता है जहां आप इंटेलेक्चुअली भी किसी को स्टिम्युलेट कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर सेल्फ थ्रू दैट पर्सन। वो कहते हैं ना कि मेरी आंखों से देखो तुम कितनी खूबसूरत हो। Right. So, if a lady asks you, how am I looking? You're looking gorgeous. See yourself through my eyes. So, Right. that is a good relationship when you're finding each other through yourself, through each other. Right. Yeah. Oh. I think that comes to the first question I will start with कि Hmm. exactly जैसे मेल पर्सपेक्टिव के लिए रिलेशनशिप होता क्या है? Male perspective के लिए relationship होता क्या है? It's different for everyone. For someone, it's companionship. For someone, it's lifelong. For someone, it's a casual thing. For someone, it's this or that. It's different for everyone. So male और perspective अगर आप बोलो तो it's not like one shoe fits all, again, as any relationship advice goes. so it's like saying a man no man's better. Hmm. This line from the Lord. Hmm. Like so in your friend group, how do you have seen के relationship exactly होते क्या है? कैसे लोग बात करते हैं relationships के बारे में? Hmm. Say that again. कि वो लोग आपके ग्रुप में यू हैव सीन ना मेल जो कि Hmm. फ्रेंड्स हैं वो किससे बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में हाउ दे डिफाइन रिलेशनशिप Um, मेरे ग्रुप में एक्चुअली हम लोग बात ही नहीं करते रिलेशनशिप्स के बारे में। अभी आई मेट माय स्कूल फ्रेंड्स, एंड लाइक व्हेन यू गो टू स्कूल फ्रेंड्स, वो सेम वाइब आती है, सब मजे आते हैं, ये होता है वो होता है। तो वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट शिटी थिंग्स, जोक्स मार रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, रिलेशनशिप की तो बात ही नहीं आई। और रिलेशनशिप की बात होती है वो भी पता है ग्रुप में नहीं होती कभी भी। कोई लड़के के ग्रुप में नहीं होगी रिलेशनशिप की बात, अनलेस इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक। रिलेशनशिप की बात होती है कोई ऐसा, मतलब पता है ना आपके ग्रुप में एक दोस्त है, एक बंदा है जो इससे कर सकते हैं रिलेशनशिप की बात, बाकी किसी और से करेंगे वो 10 जोक मार देगा, मुंह पे बेइज्जती करके भगा देगा। तो राइट बॉयज में ये होता है, ठीक है। तो ये मतलब मैं जनरल, मतलब मैं कुछ ग्रुप्स की राइट बात कर रहा हूँ। देर आर सम मैच्योर पीपल, दे हैव अ डिफरेंट थिंग, दे कैन हैव अ डिस्कशन, बट मोस्टली मैंने इंडिया में या जहां जहां मैं घूमा हूं मैंने यही देखा है। तो एक दो लोग होते हैं, एंड जनरली इवन इफ मैन आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, दे वुड जनरली डू इट इन वन ऑन वन। ठीक है, कहीं बैठे हैं, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जैसे कभी मतलब बैठ गए किसी किसी हिल स्टेशन पे बैठे हैं, ठीक है, एक बालकनी का व्यू है, और वहां पे हाथ में कोई, यू हैव समथिंग, and you are just looking in the distance and you're talking, अच्छा, I'm dating this girl and she's really nice, and ऐसी मतलब सरफेस लेवल की बातें होती हैं। या फिर अगर कभी कुछ हुआ ना कि कोई दिक्कत है एंड आई नो दिस पर्सन कैन सॉल्व इट, तो वो थोड़ा डीप में जाते हैं, और वहां पे फिर वो ना मेन प्रॉब्लम सॉल्वर्स, चलो ऐसे करेंगे, ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर, एंड दे स्टार्ट डूइंग दैट। सो द कॉन्वर्जेशंस आर नॉट इमोशनल और नॉट कि अच्छा हाउ डिड शी मेक यू फील, एंड दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन डजंट हैपन। और इफ इट हैपेंस इट्स अ वेरी, मतलब वो होता है ना बचपन का कोई दोस्त होगा ना जिसके साथ कर सकते हो, जिसे पता है ये नींद उड़ाएगा थोड़ा मजाक, उसके साथ हो जाएगा। नहीं तो मेन आर रियली गार्डेड, मेन इमोशनली इन दिस कंट्री और रादर इन दिस वर्ल्ड रादर, जितना मैंने देखा है, मैन आर वेरी गार्डेड with when it comes to relationship, and they are guarded for a very good reason, because for a very long time emotions coming out of a man was seen as a weakness. राइट So if you condition a whole generation of men that if you show emotion, you're a weak person. So what do you think is gonna happen? They're gonna guard their emotion.
इमोशंस वो बचा के रखेंगे। और वो अब वो वीकनेस कई जगह पे होता था, बट इट वाज लीथल बैक इन द डे, बट नाउ इट्स लाइक जोक बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो नॉट एवरीवन वांट्स टू ओपन अप देयर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, कि क्यों करना है, व्हाट्स द पॉइंट। राइट। सो तो दैट इज कमिंग गो तो ऑन। लाइक कमिंग टू दिस वीकनेस वाला पार्ट कि उन्होंने खुद को बहुत गार्ड करके रखा है। आई हैव सीन दिस अ लॉट अपने आसपास में। द कॉमन टर्म है, लड़के थोड़ा ना रोते हैं, लड़की की तरह क्यों रो रहा है। सो हाउ डू यू से डिफाइन कि जो ये गार्डेड है, इमोशनली गार्डिंग दे हैव डन, वो उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता है? वो उनके रिलेशनशिप पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन मेन आर गार्डेड इन फ्रंट ऑफ अदर मेन, तो वो अपने रिलेशनशिप में आके ओपन अप होते हैं। और रिलेशनशिप में जब आके ओपन अप होते हैं, दैट गर्ल, दैट पर्सन, हुएवर इट इज, दे रियली वांट कि अच्छा जब मैं ओपन अप होऊंगा तो मैं इसके सामने ओपन अप होऊंगा। अब they are being vulnerable in front of this person. So that's why if a man really finds his person and he's like, yeah, ye hai, she's the one. If a man finds that, he doesn't want to let her go because he has never got that from anyone else. ना उसके मॉम डैड से उतना ओपन हुआ, ना अपने दोस्तों से ओपन हुआ, ना अपने रिश्तेदारों से हुआ। कुछ लोग हो जाते हैं, मतलब दिस इज अगेन हाँ, वन साइडेड पर्सपेक्टिव। तो अगर एक ऐसा आदमी है जो स्टाइफल्ड रहा है इमोशनली, एंड देन ही फाउंड हम्म, दिस वन पर्सन, इनके सामने अनलोड हो सकता है, तो देन ये तो मेरा पर्सन है, मैं इसको कैसे जाने दे सकता हूँ। और फिर राइट। जब इस रिलेशनशिप में वो ज्यादा ही इंडल्ज हो जाता है, ही ज्यादा ही अटैच हो जाता है, ज्यादा ही इन्वेस्ट कर देता है, और अगर गलती से ही गेट्स ब्लाइंडेड टू अदर थिंग्स, एंड द गर्ल इज लाइक, यार नॉट माई काइंड ऑफ पर्सन, या शी फील्स सम अदर वे, फिर जब वो छोड़ कर जाती है, तो अब वही डायनामिक आ जाता है कि मेरे को नहीं चाहिए, बट ये कह रहा है मैं किसी भी तरीके से, मुझे तू ही चाहिए, तू ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो तेरे सामने ही खुला था ना। हम्म, और जब मैं तेरे सामने खुला और इस बंदी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब ये कहता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। फिर एक पॉइंट के बाद जब एक्सेप्टेंस आती है, तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी, वो वाली लाइन पे चला जाता है बंदा, कि अब तो मुझे कुछ राइट। करना है। या वो करने से भी पहले कभी कभी कुछ साइको हरकतें इनके साथ भी करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी इमोशंस के बारे में बताया ही नहीं गया, कभी सिखाया ही नहीं। अब राइट। इस चीज में लड़कियां हैं, 2 मिनट में रो देती हैं और 2 मिनट में चुप हो जाती हैं, मतलब नॉट हम्म, एग्जैक्टली 2 मिनट, बट इफ दे आर फीलिंग समथिंग, दे इमोट, राइट। they don't hold it back, and boys do not have that luxury in a general sense of the word, and when they don't, they're stifled। and जब यहाँ पे इस पर्सन के साथ ओपन अप हुआ और अब इसने भी छोड़ दिया, तो अब कुछ ना कुछ मेरे अंदर गलती होगी। अब मैं क्या करूं? अब मुझे वो भी नहीं पता मैं क्या करूं, और मैं इस चीज को भी कैसे एक्सप्रेस करूं, और इस चीज से कैसे डील करूं। तो फिर वो राइट। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये वो सारी लड़कियां पागल हैं, ये हैं वो हैं, ये सब शुरू हो जाता है। राइट। फिर दिमाग खराब हो जाता है बंदे का। उसके बाद वो कह रहा है यार राइट। दारू पी खत्म कर। अब दारू पी के क्या खत्म होगा भाई? राइट। नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। ट्रू। अब कई लोग फिर कुछ गलत ही ट्रैक पे चले जाते हैं, कई लोग फिर सोचते हैं यार छोड़ो सब, अपने काम पे फोकस करो। कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, और फिर ये सब होता रहता है, वन डायरेक्शन हो गया था। तो ऑल दिस पॉइंट केम कि कहीं ना कहीं मैन आर नेवर, उन्होंने इमोशन सीखे ही नहीं है। तो अब उन्होंने एक बार किसी को एक्सप्रेस कर लिया, तो अब वो ये है कि अब वही चाहिए। अब वो कुछ भी हम्म। करने को तैयार है उसको पाने के लिए। हम्म। सो इफ लेट्स से कि अगर बचपन से ही मैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट इमोशंस, एक एक चीज उनको इमोशंस में सिखाई जाए, हम्म। तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रिलेशनशिप? क्या इम्पैक्ट होगा इसका? क्या impact होगा इसका? Then we'll have fulfilling relationships, both of us. And actually this is not just for men, for women as well. I know I'm giving the man's perspective and I don't want to mansplain here, but हम्म। as a coach I know even women sometimes do not understand how to regulate their emotions। राइट। जैसे मैं, अगर सेम चीज जो मैंने बोली थी, 2 मिनट में रोना, 2 मिनट में चुप हो जाना, बट उसके साथ एक और चीज आती है कि कहीं कहीं जगह पे, इवन फ्रॉम द वुमेन्स साइड, देयर कम्स एन
ओवर अटैचमेंट और ओवर एनालाइजिंग और ओवर Right. दिस एंड वो कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है मतलब एनीथिंग डन इन एक्सेस इज नॉट गुड सो Right. in that order women are supposed to also be taught how to regulate their emotions तो Right. इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो मेन और वुमेन दोनों को चाहिए तो अगर Right. वो दोनों को मिलेगी ना इन अ वेरी यंग एज तो बहुत बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स होंगे Wow. अगर Right. हम बात करते हैं हमारी प्रीवियस जनरेशन और प्रीवियस टू प्रीवियस जैसे हमारे मॉम डैड या उनके मॉम डैड वो कहते हैं ना शादियां टूटती नहीं थी ये डिवोर्स डिवोर्स तो सब Mhm. वेस्टर्न चीजें हैं ये वो है वो नहीं टूटी किसी को पता ही नहीं था इमोशनल क्या होता है वो तो बस देखो उन्हें बस एक सेट सिस्टम दे दिया गया था शादी होती है बच्चे होते हैं ये करना है ये करना है ये करना है सोचना नहीं है अपना दिमाग Right. नहीं यूज करना ब्रेन इन द फ्रीजर Mhm. दिमाग यूज करा तो आपका बहिष्कार कर दिया जाएगा सोसाइटी से आपको मतलब यू विल बी आउटस्टेड कि ओ Right. ये तो अपने पति को छोड़ के भाग गई Mhm. या ये हो गया फिर वो शेम किया जाएगा ये किया जाएगा तो वो उस टाइम पे तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होते थे अब Right. अगर आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स अब वी आर कनेक्टेड ऑन इंटरनेट इट्स लाइक एवरीवन इज मोर अवेयर एवरीवन इज मोर एलिवेटेड पीपल आर गेटिंग इवॉल्व्ड तो फिर वो चीजें आ रही हैं कि यार इफ आई एम नॉट हैप्पी इफ आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड इफ आई थिंक आई डिजर्व मोर यू नो एंड देयर आर दीज थिंग्स यू नो वी कैन वर्क ऑन लेकिन ये वर्क नहीं हो रहा तो फिर इंसान कहते हैं कि यार चलो छोड़ो लेट्स यू नो कॉल इट क्विट्स Mhm. and that is okay but Yeah. in order to even reach that level where you have that understanding awareness and this thing कि यार अभी हो गया बस वहां तक पहुंचने के लिए भी एक लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयरनेस इतनी सारी चीजें चाहिए होती हैं जो हमें नहीं पता होती अब पता चल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए होता है जो नहीं होता तो Correct. आप मेरे को एक बात बताओ आप गर्ल्स पर्सपेक्टिव से कभी ऐसा होता है या आपके किसी क्लाइंट कभी कोई ऐसा होगा यार मुझे उससे ब्रेकअप करना है बट मुझे नहीं पता क्यों करना है आई एम जस्ट नॉट फीलिंग इट Hmm. Yeah, happened a lot. I think they know that कि कुछ तो गलत है. The person is not right for them. The कि वो उनको सही लीड नहीं कर रहा है, उनको उनका ध्यान नहीं रख रहा है, but still they are like नहीं नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ. हम्म And तो वो when I analyze हम्म this, हाँ, go on when you analyzed it I think this came from a space when female are taught कि तुम्हें कोई ना कोई चाहिए हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए. अब हम्म कोई नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? तो कोई हम्म तो चाहिए. अब वो एब्सोल्युटली गया हम्म तो उसकी जगह पे जब तक कोई आए तब तक क्या करोगे? तो, आई वुड लुक तो और मेल पर्सपेक्टिव फॉर इट. नहीं ये बिल्कुल सही चीज बोली है आपने और इसमें क्या होता है इसी कंफ्यूजन में ना कुछ लोग तो रिलेशनशिप चलाते रहते हैं कि यार पता नहीं है पता नहीं अब वो क्यों नहीं पता क्योंकि पता ही नहीं मोस्ट रीजंस क्या है पता ही नहीं हम कौन है पता ही नहीं हमें क्या चाहिए और फिर क्या होता है ब्रेकअप होता है we go to a therapist, we go to a healer, we go to a life coach, we go this person, that person, they give us these terms कि ये होता है, this is what is happening to you, this is what's going on, and then we're like हाँ यार ये होता है, ठीक है. अब उस टाइम पे for the time being you have understood these terms, you have understood what it means, and you have given yourself a rationalization. ठीक है ये हुआ है. But as time goes along, आपको वो चीजें भी भूल जाती हैं. और अगर वो पैटर्न सेट है अगर आप वैसे ही इंसान हो कुछ काम नहीं किया उस पे ढंग से बस वो सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो फिर बाद में वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं और फिर आप कहते हो कि नहीं थेरेपी तो बेकार है एक बार करी थी कुछ थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ अब दोबारा वही तुमने खुद को तो नहीं बदला ना कुछ ढंग से सीखा राइट. तो फिर राइट. सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे सेल्फ वर्क का क्या रोल आता है रिलेशनशिप में इन जनरल बहुत दोनों आता के है लिए? बहुत आता है male female both need to do a lot of self work in fact before this call I was having a conversation with someone and in relationships there are many moments when both of you need to do some kind of self healing on your own separate from your partner मतलब देखो अगर कोई चीज है ना जो आपको पिंच करी या कुछ हो गया तो या तो उसको तमीज से कम्युनिकेट करो ठीक है और हम्म. अगर नहीं हो पा रहा कम्युनिकेट या नहीं समझ आ रहा या फिर कम्युनिकेट करने के बाद उसका ढंग से सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा ठीक है कोशिश हो रही है बट सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा
तो आपको पता है इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। लेकिन तब भी वो हो रहा है, बज रहा है दिमाग के अंदर, नहीं अच्छा नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है। तो आप अपने आप को साइड में लेके जाओ और अपने ऊपर वर्क करो कि नहीं, आई वॉन्ट टू गिव दिस टाइम बिकॉज दिस रिलेशनशिप मीन समथिंग टू मी। राइट। और अगर ये रिलेशनशिप मेरे लिए कुछ मीन करता है तो मैं खुद को हील करूंगा, करूंगी, एंड आई विल कम बैक एंड शो अप इन अ बेटर वे। अगर मैं बार बार आके कंप्लेन करूंगा, कंप्लेन करूंगी कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो सामने वाला बंदा कहेगा सुन, बहुत हो गया। अब मतलब देखो, एक होता है ना प्रेशर कुकर, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक टाइम के बाद तो सीटी बजनी है, और आपने तब हाँ। भी नहीं करा तो फटना है कुकर। तो राइट। फिर सीटी बजती है तब क्या होता है, कोई मेल केसेस में बंदा चीख देता है, ठीक है। और अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता उसमें, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाई गई, सेल्फ कंट्रोल भी नहीं सिखाया गया, तो ऐसे लोग जाके फिर करते हैं। और जब ये हम्म। चीजें होती हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बट प्रॉब्लम जहाँ बीच जो रूट है उसका प्रॉब्लम का, वो तो हमने सॉल्व ही नहीं करा। राइट। और अब वो प्रेशर कुकर बढ़े या सीटियां बजे या ये सब हो, उससे पहले यार साइड में जाओ, खुद को ठंडा करो यार। डू आई रियली नीड टू डू दिस? विल इट राइट। रियली हेल्प इन टेक दिस इन अ बेटर वे? मतलब हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाएंगे अगर मैं ये यही बातें बार 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 लूप पे चलती रहेंगी तो? या हम एक बार बैठें, तसल्ली से टाइम लें और इसको रूट से ही खत्म कर दें, वो बेटर होगा। बट हियर डू यू थिंक कि कम्युनिकेशन वाला पार्ट में कहीं ना कहीं मेल फाइंड इट हार्ड टू ओपन अप कि एग्जैक्टली वो क्या प्रॉब्लम ऑफ को फेस कोर्स, कर रहे हैं? both, male female both. See, mostly males, for sure, they, because communication में अब मैंने देखा है, and when my clients used to come to me, a lot of females were like, we I want communication, I want, इसको तो बात ही नहीं करनी आती, कुछ नहीं बोलता है, ये कुछ नहीं बोलता, एक्सप्रेस ही नहीं करता, मैं कुछ कहती हूँ फोन रख देता है, छोड़ के भाग हम्म। जाता है, कॉन्वर्जेशन से निकल जाता है, क्यों? उसको किसी ने सिखाया ही नहीं। और उसका क्या है, अगर मैं इस कॉन्वर्जेशन में ज्यादा रहा तो ये कुछ बोलेगी, मैं ट्रिगर होऊंगा, फिर मैं कुछ बोल दूंगा, फिर ये सड़ जाएगी। लेट्स नॉट डू दैट गेम। तो वो अवॉइड कर रहा है हम्म। सीधा। अब वो लड़की कह रही है कि मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, उसकी नीड्स कुछ और है इन दिस मोमेंट, और लड़के की नीड्स है मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे वही हम्म। सारा नहीं चाहिए बार बार। तो अब यहाँ पे आता है जो आपने शुरू में एक बुक का नाम लिया था ना, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। वीनस। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ना, लोगों के पर्सपेक्टिव्स ये होते हैं, मेरा अलग होता है। तो मैं तो अभी तक मेरे जितने रिलेशनशिप्स रहे हैं, रिलेशनशिप्स, उनमें मैंने कभी भी एक फाइट दोबारा नहीं करी। हम्म। Whenever I see a fight, I just get to the root of it. I sit my partner down, we have a deep conversation on it, and we fix it. वाओ। तो इसमें मैं गिन सकता हूँ हाथ पे, 3 फाइट्स हुई थी मेरे, एक मतलब जो मेरा लंबा रिलेशनशिप था, 3 फाइट्स, दैट्स इट। और वो भी रिपीट नहीं हुई उसके बाद। वाओ। सो लाइक व्हेन हाउ यू स्टार्टेड, मतलब कैसे रियलाइज हुआ कि कैसे रिजॉल्व करना है? लाइक एनी हेल्प के टू द पीपल जो हमें देख रहे हैं हम्म। कि वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं फाइट्स को? कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं फाइट्स को? देखो, जैसे सिंपल चीज है, आप सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और एक दूसरे से बैठ के बातें किया करो, बोथ मेन वेमेन बोथ। आई नो वेमेन से वी नीड टॉक मोर, हमें बात करने में अच्छा, even men needs to understand and men do, I'm not, I've seen, आज की डेट में ना people are very evolved। ये भी जो भी मैं आपको बता रहा था ना कुछ men के बारे में, वो mostly men होते हैं, but I have to also be aware of this thing, that people who come to a life coach or a therapist or this or that, they are the ones who are dealing with a lot of bad things. But I have also seen a majority level of healthy relationships which are happening हम्म। today, because men are also investing into these things. They are listening to life coaches, they're getting into courses, they're getting into these communities, and there are good and bad both, for women and men. I've seen both kind of communities on the internet, and it's just it's वाओ। a, that's a different topic for some other time. But
for now and for this question, you just need to educate yourself as man and as a woman as well. ठीक है, एज अ वुमन आप देखो कि आपके मैन की क्या नीड्स हैं, ठीक है, हम्म। उसके क्या वैल्यूज हैं, और जो है ना, आई नो थोड़ा सा ना कभी कभी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, ठीक है, बट अगर आप उस मैनिपुलेशन को एक अच्छी चीज के लिए यूज कर रहे हो ना, तो इट्स फिर भी ओके। एंड कभी कभी अगर आप वो ऑनेस्टली आके बोल भी देते हो ना कि देख मैंने ये किया और मैंने ऐसे किया फॉर यू, बाद में बता दोगे, तो वो मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन नहीं है। जैसे हम कृष्णा जी के अगर भक्त हैं तो उन्होंने भी काफी इधर उधर चीजें करी थी, एंड वो कहते हैं ना Correct. प्यार और जंग में सब जायज है, ठीक है, हम्म। अनलेस यू आर किलिंग मतलब वो जंग में होगा, बट प्यार में डोंट डोंट किल पीपल, हम्म। डोंट डू समथिंग इलीगल रादर। बट जैसे ना इनमें और क्या हो सकता है, यू कैन ऑल्सो डू लाइक कपल एक्सरसाइजेस टुगेदर। व्हेन आई से एक्सरसाइजेस आई मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। आप फिजिकल वर्कआउट भी कर सकते हो, दैट ऑल्सो हेल्प्स, बट ऑल्सो सिट एंड रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, हु यू आर हम्म। एज अ पर्सन। तो वो होता है राइट। ना, हम डेट्स पे जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, 20 क्वेश्चंस, नेवर हैव एवर, ये सब वो सब करते हैं। तो वो हम ऐसे करते हैं, एक दिन जब सीरियस रिलेशनशिप है, हमें पता है कि हमें अपने एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, ये करना है वो करना है, तो आप बैठो और जस्ट लिस्ट डाउन सम क्वेश्चंस दैट यू रियली वांट टू नो फ्रॉम दिस अदर पर्सन, ठीक है। कभी कभी क्या राइट। होता है, वो बंदे को खुद नहीं पता होता, जब वो क्वेश्चन सामने आता है, अरे हाँ ये भी है, अच्छा मैं ऐसा हूँ ये ऐसी है, अच्छा वाह। तो वो एक्सरसाइज अपने आप में भी बहुत अच्छी चीज होती है, और हम्म। वो आपकी अवेयरनेस अपने बारे में और उसके बारे में बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, एंड दैट विल टेक यू ऑन अ वेरी लॉन्गर लाइक लाइफ टाइम टुगेदर। एंड जैसे मैंने कहा ना आपको शुरू में कि इट द रिलेशनशिप्स आर गुड, रिलेशनशिप्स आर वे यू फाइंडिंग ईच अदर थ्रू ईच अदर। राइट। तो ये एक्सरसाइज बैंग ऑन। राइट। एंड ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो सब मैं कराता भी हूँ, तो मुझे तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन चीजों का, बट या एनीवे, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर अब रिलेशनशिप में हो गर्ल्स, तो पहले अपने बंदे को अमन सर के पास भेजो, उसके बाद गो अहेड विद द अरे रिलेशनशिप। आप मुझे जो आपने ये डायलॉग बोला है ना, मैं जितनी मतलब मेरी फ्रेंड्स, एक्सेस, जिनसे मैं मिला हूँ, वो कहती हैं भाई तू क्या है, मेरा बंदा 20% तेरे जैसा हो जाए मैं बहुत खुश हूँ, या ये हो जाए बहुत खुश हूँ, उसको सिखा, उसको सिखा। मेरी इतनी फ्रेंड्स ने मुझे बोला है भाई तू लाइफ कोचिंग छोड़ दे, तू ना रिलेशनशिप कोच बन जा और हमारे बंदों को सिखाना शुरू कर दे बहुत ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो, वाह। हम्म, ओके। सो मैंने बोले क्वेश्चंस की एक दूसरे मतलब सेल्फ वर्क करो साथ में, तो हम्म, हर कोई इतना तो नहीं करना पसंद करता। हम्म, बट लेट्स सी 3 क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि एक दूसरे को पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में। सो व्हाट वुड ठीक, बी द टॉप 3 क्वेश्चंस? दो तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं वही दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर वन इज व्हाट आर ईच अदर्स वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप दे डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ठीक है। राइट। वैल्यूज कि ये पर्सन सबसे ज्यादा क्या वैल्यू करता है, मैं वो वाला वैल्यू कह रहा हूँ, वो नहीं कि वो क्या घर से सीखे एंड ऑल दैट। ये वैल्यू सबसे ज्यादा क्या करता है लाइफ में, ठीक है। राइट। जैसे किसी की होती है फैमिली, किसी की ये हो गॉड, किसी की कुछ, तो वट एवर द पार्टनर्स वैल्यूज आर एंड वट एवर योर वैल्यूज आर, यू टेल योर वैल्यूज टू योर पार्टनर, आस्क देम देयर वैल्यूज, so that is राइट। number one. And then you also understand, I forgot what was the next one. वैल्यूज में आप वो वाली वैल्यूज भी देख सकते हो कि यू नो हाउ दे आर रेस्ड एज अ पर्सन, एंड व्हाट काइंड ऑफ, ये काफी बेसिक है, बट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव विद देयर पेरेंट्स। क्योंकि फॉर मेन इफ दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देयर मदर, they would have a good relationship with you. If for women, if they have a good relationship with your father, थोड़ा सिगमंड फ्रॉइड हो गया, बट इसके अंदर भी देर इज वेट टू इट। और राइट। इन मतलब नॉट जस्ट कि जैसे अगर इफ आई एम अ गाय और मैं मेरा मॉम के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो अगर मेरा डैड के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा है, तो वो भी दैट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, राइट। ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड देन यू हैव कि what are the things that gives this person, or what are the things that make this person tick। मतलब कुछ होता है ना कि ये मुझे पता है कि ये चीज मैं करूंगी तो ये खुश हो जाएगा, ये चीज मैं हम्म। करूंगी तो ये
वो हो जाएगा। ठीक है। तो सेम विद द गाइस, और ये पता चल जाता है द मोर यू स्टे विद द पर्सन, ये पता चल जाता है। बट आप एक बात बताओ, अगर आप शुरू में ही ये चीज डिस्कस कर लोगे तो हम्म। आप एटलीस्ट देखो, पता है क्या होता है काफी बार ना, जैसे अगर आप किसी की बात करो, अगर मैं बोलूं मैं, तो मुझे खुद भी अपने बारे में, अगर मैं इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ थ्रू माई पार्टनर, तो देर आर सम थिंग्स दैट आई नो अबाउट माई सेल्फ, बट सम देर आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। तो राइट। जो मुझे पता है वो तो मैं बता दूं अगर पहले से ही, और फिर अगर हम साथ साथ कुछ डिस्कवर कर रहे हैं तो कुछ नया आ रहा है तो वी कैन राइट मोर। बट जो शुरू से मुझे राइट। पता है कि भाई ये चीज तो मुझे करनी ही नहीं है, जैसे अगर राइट। कोई है, इफ समवन इज देयर, आई एम अ माउंटेन पर्सन, तो अगर तुम माउंटेन पर्सन हो तो तुम्हें पता है भाई मेरे को अगर ट्रिप्स प्लान करनी है तो मैं माउंटेन की तरफ ही ट्रिप करूँ, तो तुम्हारी आधे से दर्द तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी हम्म। कुछ कुछ चीजें अगर आप पहले से एक दूसरे के बारे में जान के रखो कि ये है, दीज आर डूज एंड डोंट्स इन राइट। दिस रिलेशनशिप, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप लिस्ट भी बना सकते हो ऐसे ही डूज एंड डोंट्स करके। एंड ये तो मैं बिल्कुल नहीं, ये तो मैं फिर भी ओके, ये मैं सही, डन। Wow. Girls, a lot of homework to do. So, okay. So here we have a question यहाँ पर meme food का कि partners can have different values but can be still together. Yeah, everyone has different values, but to see if the values are aligning, in the sense if they're going in a similar direction and they're not crossing path। ठीक है, अगर कहीं कट हो रहा है ना, तो वो जो जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है ना, आप उस पॉइंट को डिस्कस करो विद पार्टनर। अगर वो पॉइंट आगे जा सकता है तो ठीक है, बट अगर वो नॉन नेगोशिएबल पॉइंट है तो वहीं छोड़ दो। Right. सो आई होप Any दैट आंसर्स। example you can give with her about this value वाला अलग अलग values के लेकर? ओके, so if someone has a value that let's ask meme food, ताकि उनका हेल्प हो जाए कि आपके पार्टनर की क्या वैल्यूज है और आपकी क्या वैल्यूज है जो डिफरेंशिएट है, ताकि हम आप ही को एक कस्टमाइज्ड आंसर दे दें। Yes. जब तक वो आंसर करे तब तक आई हैव हम्म, द बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक जो हर लड़की का आंसर क्वेश्चन होने हम्म, वाला है कि एग्जैक्टली exactly पता कब चलता है कि बंदा सीरियस है कि तुम्हें लेकर ही इज वेरी सीरियस अबाउट यू। हम्म, पता कब चलता है बंदा सीरियस है? देखो, कुछ कुछ रिलेशनशिप में होता है जिसमें पहली नजर में पता चल जाता है, एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर गाइज, वो गर्ल्स के लिए भी है। लाइक यू जस्ट नो। एंड देन राइट। कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे मैं भी कह रहा था ना, कि काफी टाइम पे हम खुद को ही नहीं जानते पूरी तरीके से। तो वो जब हम एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, तब पता चलता है। जैसे इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, देर वॉज अ मोमेंट दैट हैपेंड विद मी इन वन ऑफ माई पास्ट रिलेशनशिप्स एंड इट वॉज सो माइंड ब्लोइंग दैट आई न्यू दैट दिस वॉज द पर्सन। एंड द मोमेंट आई न्यू, मेरा पूरा बिहेवियर, मेरा पूरा एटीट्यूड, मैंने तो बोल दिया था मुंह पे कि ये हुआ है, एंड आई कांट इवन इमेजिन सम काइंड ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ अ थिंग हैपनिंग विद समवन एल्स। तो यू आर माई पर्सन। तो अगर वो बंदा सामने से कह रहा है ना और वो कन्विंसिंग है, लाइक पता चल रहा है कि भाई ही मीन्स, पता है गर्ल्स की इंट्यूशन वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है। तो करेक्ट। मैं गर्ल्स को एक एडवाइस करूंगा, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो। ठीक है, क्योंकि ना कभी क्या होता है, बंदा ज्यादा गुड लुकिंग है या फिर प्यारा है या ये है, तो ना थोड़े से वो रेड फ्लैग्स मिस कर देते हैं हम जान के कि यार चल चल एक दो चीजें ठीक है। तो अगर आप उस चीज को साइड में रख के ऑब्जेक्टिवली देखोगे ना, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि जो लड़कियां पकड़ लेती है ना इतनी सी बात पे, तो ये सवाल तो लड़कियों को मुझे पूछना ही नहीं चाहिए कि कब पता चलेगा। अगर आपको वो कंफ्यूजन आ रही है या दिक्कत आ रही है या कुछ आ रहा है, और वो बंदा ही कंफ्यूज्ड है या बंदे में कोई मतलब, या बंदा स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज से, कभी कभी हो सकता है कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और वो नहीं, उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि उसे क्या करना है। तो एट हम्म। दैट टाइम यू हैव टू बी अ पार्टनर, you have to be the support system, and both that goes for men as well. If any men who राइट। are listening this, and if the lady is struggling, then you become that support system। ये it's a yin and yang game, and ये परसेंटेजेस भी शिफ्ट होती रहती हैं, इट्स नॉट राइट। ऑलवेज 50-50। लोग कहते हैं ना हमें तो 50-50 रिलेशनशिप चाहिए, नहीं होता ऐसा। लेट्स राइट। गेट रियल। देर आर टाइम्स
it's 80-20. There are times when it's 60-40. There are times when it's 50-50, but there are maximum number of times it's taken. तो उसमें right, a good partner will show up and stand up as the other person needs. And right. कई relationship coaches or even one of my mentors, he says, leave this 50-50 bullshit. And वो सब छोड़ के ना, you be 100% there. Hmm. Wow. So if you are 100% there ना, आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि वो कितना परसेंट है. Right. और But जब वो don't बंदा you? देखेगा ना कि ये बंदा तो 100% है, ठीक है, 100% है ना, हेल्दी वे, नॉट लाइक कि Hmm. तुम खतरनाक वाले ऑब्सेस हो रखे हो और वो तो नॉर्मल, मतलब, और वो ऑब्सेशन देके वो डर रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, इन अ पॉजिटिव, इन अ हेल्दी वे, इफ यू आर 100% विद दैट पर्सन, बीइंग देयर बैक, बीइंग देयर दिस, देन भाई कौन किसको नहीं चाहिए. कोई Right. कहेगा कि यार ये यही तो चाहिए था लाइफ में. Wow. सो Right. इन्होंने कुछ लिखा है मीम फूड ने आगे. I trained him to watch your videos, sir. He's getting better and better. सॉरी. उन्होंने पहले ऊपर लिखा है कि me and my partner have different values, but we respect each other values. सॉर्टेड. उसके बाद we do talk if we don't agree, but get solved as we respect each other. And at last, she is telling, I trained him to watch your videos, sir. He is getting better and better. Thank you so much. But Amazing. that's beautiful what you said. If your partner and you, they respect, you guys respect each other's different values, then nothing better Wow. यार. एंड इसमें तो फिर आपको ये सवाल ही नहीं शुरू करना चाहिए था, बिकॉज अगर आप उस चीज को क्वेश्चन करते रहोगे ना, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, तो लेकिन फिर आप वंडर करते रहोगे कि क्या है क्या नहीं है. एंड हमारे ब्रेन्स ऐसे स्टूपिड गेम्स खेलते हैं हमारे साथ, जब फ्री टाइम वो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड्स आर डेविल्स प्लेग्राउंड. Hmm. तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ थिंग्स, यू विल स्टार्ट सेल्फ सैबोटाजिंग योरसेल्फ, ये करने लग जाएगा. छोड़ दो, अगर वो रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छा बंदा है, भला बंदा है, तो करते रहो. वैल्यूज मैच नहीं हो रही, एक दो वैल्यूज होंगे, आई डोंट थिंक सब होंगे, बिकॉज अगर सब नहीं मैच हो रही होंगी तो तुम लोग पार्टनर्स नहीं होगे. और अगर एक दो Hmm. वैल्यूज हैं जो ढंग से नहीं मैच हो रही हैं, you respect each other's differences, then nothing better. It's gonna be a good relationship. ओके. एंड ये भी बहुत अच्छा बोला, उसको अच्छे से ट्रेन कर रहे हो मेरे वीडियोस दिखा के. एंड ये वाला वीडियो दिखा देना, इतना पावरफुल वीडियो बन रहा है. आई थिंक दृष्टि विल बी वेरी हैप्पी विद द एंड रिजल्ट, बिकॉज वी आर गिविंग सो मच स्टफ हियर. मैं नहीं सोच रहा हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है, मैं कुछ गेट कीप नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट लेटिंग इट Right. फ्लो. एंड आई होप दृष्टि यू आर हैविंग फन एज वेल. Yeah, I'm loving it. I think that's the purpose यहाँ पर ना कि let's keep it raw, कि let's flow it, Yeah, I right? always Okay. do those. I think that's the beauty Mm, here. mm, Okay, then I am here with the last question. Then we're open for other questions. mm, कि according to you as a coach, आप mm. क्या तीन एडवाइस दोगे टू द फीमेल्स जो उनको फॉलो करना चाहिए रिलेशनशिप में फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव एंड एज अ कोच? मैं दो तीन एडवाइस ऑलरेडी दे चुका हूँ थ्रू आउट दिस, बट ओके. फीमेल्स को मैं क्या एडवाइस दूंगा एज अ कोच दैट दे शुड फॉलो. ओके. अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने लिस्ट बताई थी, वैल्यूज, व्हाट मेक्स द अदर पर्सन टेक डूज एंड डोंट्स, और वो सब वो बना लो अपने पार्टनर के साथ. अगर पार्टनर नहीं है, कुछ लोगों के नहीं होते बट दे वांट अ पार्टनर, तो बिफोर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, लुक विद इन, यू नो, बी अ पर्सन जिसको, मतलब, खुद ही यार वो बन जाओ ऐसे रॉकस्टार की बंदे की लाइन लग जाए. मतलब इफ यू आर एन ऑसम पर्सन ना, देर इज नो, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई पार्टनर नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन राइट, व्हेन आई से दिस ना, यू हैव टू रियली लुक इन द मिरर. एंड व्हेन आई से दैट, मतलब जो आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो, स्टोरीज दे रहे हो, वो सब छोड़ दो. ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, सब वर्केबल है. ठीक है, राइट, और अगर वर्केबल नहीं है, तो आप, मतलब, इफ देर इज समथिंग विच कैनॉट बी रिवर्स्ड, देन यू कैन क्रिएट समथिंग डिफरेंट विच मेक्स यू वेरी स्पेशल. राइट। तो वाओ! आप उस चीज पे फोकस करो, अपने आप को एक शीशा दिखाओ, सच वाला शीशा. इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट दैट एंड मिरेकल्स विल हैपन.
बट इफ यू Right. रियली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, नॉट लाइक एक चीज इग्नोर कर रखी है बाकी सब सही Hmm. है ऐसे नहीं। हाँ. Right. और अपने अगेन वर्क ऑन योर इनर वर्क। ठीक है, मैंने से इनर वर्क, दिस इज द सेकंड पॉइंट। इनर वर्क मींस आप एनालाइज करो बैठ के कि यार जो मेरे पुराने रिलेशनशिप्स थे उनमें क्या नहीं वर्क किया, व्हाट हैपेंड Hmm. एग्जैक्टली। ठीक है, एंड ये इनर वर्क ऐसे भी हो सकता है कि हम काफी बार अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में ना बोलते हैं कि यार वो ऐसा था, वो ये था, वो ये था। आप वो सब छोड़ दो और आप अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मैं कैसी थी Hmm. Wow. और मैं कैसे बेटर हो सकती हूँ, कहाँ बेटर हो सकती हूँ। तो Quite powerful. अगर अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, फिर देखो, Right. मैन ऑफ योर ड्रीम्स इज वेटिंग। I think this is the most powerful advice anyone can have. कि हम कितना इजीली ब्लेम करते रहते हैं ना, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, और अपने पावर ही किसी और को दे दी. Take your power back and start with the inner work हम्म। and see the results. See the charm. Definitely, you're going to have your dream man. Amazing. एंड लास्ट एडवाइस, forgive. Hmm. Forgive everyone in your past, Right. and more importantly, forgive yourself. Hmm. And when you are forgiving everyone in your past, you are forgiving yourself. Right. So leave that. Wow. Girls, you got the best advice today. Amazing. Okay. So, main food is saying here communication should be clear, and even if it is hard, I think that should tell this. Yes, definitely. That's how relationship works. Hmm. And anything, sir, you want to add? No, she said one more thing. No, no, I'm satisfied. We both are learning from you. I'm asking to whom to follow you. They will have this issue. Thank you. And before, I think I want to acknowledge a few more replies. जैसे शुरू से ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा मैं. Sir, indifferent kind of guy, a total green flag. I don't think most men think like him. Thank you so much. Then Aman Khurana from Haryana. I'm from Delhi, but okay, that rhymes. How are you so right? May I know about you a bit? Like, what do you do exactly, Aman? That will take another life, sir. Well explained. Definitely. Thank you. And looking nice, sir. Thank you so much, Ram. Then too much on point, Aman. Tanya, thank you, Tanya. Hi, Aman. Very well said. Hi. Individuality is the key for a happy relationship. You can't make the relationship your entire universe. Too much attention towards anything is harmful. Am I right? Yeah, you are right. And partners can have different. हाँ ये हो गया था. Right. So we've just covered of all the comments. Yeah. Your Yes. sessions are always good, sir. Thank you. Forgive yourself. Hmm. Yes. Amazing. If you Yeah. have any doubt, you can ask us. कुछ भी question पूछना है, sir is open to Uh, it. नहीं नहीं मैम, एक्चुअली टाइम हो गया. It's been an hour and Okay. I have some people at home. I have some Yeah, guests. definitely. So Definitely. Yes. yeah, I'll be taking your leave. But before we go, you know what we do? Dance? Do you want me to have the music? नहीं नहीं Okay, नहीं we first let's अच्छा. No, actually you don't, because let me tell you guys who will be watching it later how we met, Coach Drishti and I. We met in a few sessions, but this young lady would attend half of the session and then run away, jump into some other session. फिर एक और बार मिले थोड़ी देर के लिए, हाय सर, ये अबे भाग गई. तो आपने मेरे एंडिंग नहीं देखे सेशंस के, तो आज मैं आपको वो no. एंडिंग कराता हूँ. ठीक है, व्हाट वी डू इज वी रेज आवर फिस्ट्स, डू दिस, एंड वी लॉक एंड लोड ऐसे. Yeah, and then we do this. Don't hit your phone. Yeah, Okay. and with all our power, all our might, like gut से आना चाहिए एकदम. We say take charge. Take Yeah, charge. Oh, इसमें wow. ऐसे करते हैं. ठीक है. Like this.
Yeah, we do. I'll show you one Yeah, and then we do it together. Okay? done. Take charge. Oh, And okay. it should be powerful. आपके पड़ोसियों तक को सुनाई देना चाहिए, सामने वाला कुत्ता भौंकना चाहिए, सब होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है? चलो, आओ। This is how we end this. Take charge. Touch. Yes. Awesome. Thank you so थैंक much. यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर फॉर आई थिंक बहुत मजा आया बहुत ही ज्यादा अच्छा था Thank बहुत कुछ सीखने मिला एंड आई थिंक गर्ल्स जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग इट you. अ ड्रीम मैन इज वेटिंग फॉर यू Absolutely. All the यस power to you, ladies. All the best. And all the men who are watching, if you could learn something, thank you so much. Please apply. If you didn't, show it to your girls. यस And for all the people who've joined, Meme Food, you asked really great questions. Thank you so much. Then we have Satvika. Thank you. Himanshi, Shweta, Ahmed, Arvind sir, Jayashree Thakur. Then we have Avinash. Thank you guys. Thank you so much. And most importantly, thank you so much, Drishti, for having me. It was a lovely time spending with you, and it was a great live. I could see the power that was coming through. yes So, yeah. yes thank you so much Mm. sir we learned a lot today and we are definitely going to apply it girls Mm. take it Yeah. And before we leave, Drishti, are you doing something interesting? Do you want to plug anything? Do you want to tell people where they can any sessions you're doing? right now we are coming up with nightclub. Nightclub. Yes, Okay. no, a lot of people just suffer with sleeping. So we are like, let's help them. Wow, interesting concept. Yeah. So, would love to hear more about this. And anyone who's interested into nightclubs, please ask Drishti. And will you be dancing in that nightclub? Yeah, definitely. Sir, anything you Awesome. want to say? Yeah. Yeah. So just quickly, someone asked, what do you do exactly? I help people with procrastination first, take charge of their life. That's why the एंड प्रोक्रास्टिनेशन के बाद हम लाइफ मास्टरी पे जाते हैं लाइफ मास्टरी में रिलेशनशिप जैसे आज का टॉपिक था वो भी पार्ट होता है सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन फाइनेंशियल लिटरेसी लेगेसी ये सारी चीजें हैं जो मैं सिखाता हूँ और देन वी टेक इट टू लिटरली बिल्डिंग अ लेगेसी मेकिंग लॉट ऑफ मनी generational wealth all of that good stuff it's a whole journey and I've been doing this for 7 years soon to be 8 years as a life coach and 5 years as a business consultant. And yeah, और अभी मेरा कोई next session exactly नहीं आ रहा because I'm going on a vacation. And I came here just because you asked me so nicely and we've been connected for a while. Otherwise मैं full उस mode में हूँ visa tickets packing ये वो तो and Where अभी are मेरे you को तो going? fast भी खोलना था. हम्म. अभी आज ही मैंने आज सुबह लाइक आई हाँ, स्टार्टेड हैविंग सम कोकोनट वाटर तो अभी धीरे धीरे आई एक्लिमेट माई बॉडी बैक टू फूड बिकॉज व्हेन यू डू लाइक अ लॉन्गर फास्ट यू कांट जस्ट सिंपली स्टार्ट ईटिंग फूड अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ओके सो या ओके नाउ एंड लेट्स सर अभी उनको फास्ट खोलने देते हैं फाइनली हम 9 days हमें ladies and gentlemen you can do yes it as well like this हमें tree मन नहीं कर रहा आपको जाने देने का बट वी हैव टू नाउ hmm. Okay, thank you so thank much you. sir for joining us Bye. bye Lots of love and more all the best to everyone for their relationships. Hope you guys find love because love is all we got. yeah. Yeah. Bye. Bye.